کہ آپ سب تیار ہیں کہ خداوند کا پاک کلام سنیں؟ سو ہم اپنی بھرپور تعلیم میں خداوند کے خادم کے سامنے لائیں گے. ہاللیلویا، پریز کریں. بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے پیارے بھائی، اور آپ سب کے آنے کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ خداوند نے آج ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے، اور اعزاز جو ہے یعنی عزت جو ہے یعنی پریولیج جو ہے یعنی شان جو ہے، یہ ساری ہمیں کس کی طرف سے ملتی ہے؟ خداوند کی طرف سے. یسوع مسیح بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے ملتی ہے. آپ جانتے ہیں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں زمین پر حکومت کرنے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا. تو ہمارا بادشاہ ایک سروس دینے والا بادشاہ تھا، اور سروس کن لوگوں کو؟ جو کھوئے ہوئے تھے. اس کے دل میں ان کے لیے خدمت کا جذبہ تھا، محبت کا جذبہ تھا. اور اس نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ یوحنا 14 باب 13 باب میں تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، یعنی میں تمہارا استاد بھی ہوں اور خداوند بھی ہوں، اور خوب کہتے ہو، واقعی میں ہوں، لیکن دیکھو میں استاد اور خداوند نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں. تم پر بھی فرض ہے کہ تم ایک دوسرے کو کیا دو؟ پاؤں دھو. اس کی بہت سی باتیں ہیں، کبھی موقع ملا تو ضرور کریں گے. پاؤں چال چلن کو ظاہر کرتے ہیں، اور اگر ہم ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں ایک دوسرے کے چال چلن کو پاک کرتے ہیں. ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پاک چال چلن ایک دوسرے سے ملتا صاف ستھرا ہونا چاہیے. اگر آپ کے بھائی کا چال چلن ٹھیک نہیں تو آپ اس کے پاؤں دھو کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں. ایک بھید ہے، مکاشفہ ہے، جس کو ظاہر کرتے ہیں کہ میرا بھائی یا میری بہن کے پاؤں اس کا چال چلن پاک ہو. اور حلیمی جو ہے خدا کی حضوری میں قابل قبول ہو جاتی ہے. یسوع مسیح حلیم ہے، لکھا ہے وہ دل کا حلیم تھا. کون حلیم تھا؟ خداوند یسوع مسیح. سب سے پہلے اس نے حلیمی دکھائی. خداوند کا شکر کرتے ہیں. حلیم بادشاہ، خادم، خدمت کرنے والا بادشاہ. آمین. جس کو ہم قبول کرتے ہیں، جس کے باعث ہم زندگی اور ابدیت میں جائیں گے. خدا کا شکر اس نے ہمیں آج یہ اعزاز دیا کہ ہم اس کے لیے جمع ہوتے، اور اس کی خوراک میں سے جو ہمیں اپنے منہ سے کھلاتا ہے، جس کے باعث انسان ابدی زندگی جی سکتا ہے اور اس پر موت وارد نہیں آ سکتی، ابدی موت. آمین. اس کو سننے، جاننے اور سمجھنے اور اپنے لیے بٹورنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. خدا ان کا ہم اس بات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں. آمین. اور شکر گزاری سب سے پہلا کام ہے ایک ایماندار کی زندگی کا. ہاللیلویا. جو آخری زمانے کے برے سائن ہیں ان میں ایک ناشکر ہونا بھی. لکھا وہ لوگ ڈھیٹ ہوں گے، خود غرض ہوں گے، آمین، تند مزاج ہوں گے، بری گفتگو کرنے والے ہوں گے، اور لکھا ہے ناشکر ہوں گے اور ماں باپ کے نافرمان ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہوں گے. ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ناشکر ہو. خدا نے ہمیں سب کچھ دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا گھر دیا جس میں آ کر کے ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں. ہم ناشکر نہیں ہیں، ہم تھینکفل ہیں خداوند کے کہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. خداوند کا شکر ہو. آج کی صبح میں میری طرف سے آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے فاتح اور جلالی نام میں اسلام قبول ہو، اور خدا آپ سب کو برکت بخشے. میرے عزیزو، آئے ہم دیر کی بغیر خداوند کے کلام یعنی وقت کی آواز کی طرف بڑھتے ہیں. جب میں بات کرتا ہوتا ہوں وقت کی آواز، تو اس کا مطلب ہے ہمارے زمانے کی وہ آواز جو خداوند نے اپنے فرشتہ آخری زمانہ کے نرسنگا پھونکنے والے کے ذریعہ سے دی ہے. اس آواز پر دھیان اور گیان لگاتے ہیں، کیونکہ ہر زمانہ میں ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے آ کر نرسنگا پھونکا ہے، اور اس زمانے کی کلیسیا نے اس نرسنگے کی آواز پر، ترہی کی آواز پر کان لگایا، اور وہ آواز صاف تھی، اس لیے کچھ بیج نکلا اور باہر آ گیا. ہاللیلویا. ہم بھی اپنے زمانے کا بیج ہیں جن کے لیے خداوند پکار رہا ہے. نکالیے گا میرے ساتھ خداوند کے کلام اقدس میں سے آج کے وقت کی آواز، دا وائس آف آور ایج، ہمارے زمانے کی آواز، تعریف ہوئی اسی کے نام کی. جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ کھولیں گے تاکہ خداوند کے نام کو جلال دیا جائے. پریز لارڈ. گلتیوں کا خط ہم نکالیں گے. نئے عہد نامے میں مقدس پولس رسول کا گلتیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اس کا 5واں باب، چیپٹر 5 ہم نکالیں گے، اور 7ویں آیت سے لے کر کے 10ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے. تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے. بلند آواز میں. کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ یہ ترغیب تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں ہے. یہ ڈیسیژنز، یہ ترغیب، یہ عقل تمہیں تمہارے بلانے والے نے نہیں دی. جی. تھوڑا سا خمیر سارے گندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. سارے گندھے ہوئے آٹے کو تھوڑا سا خمیر جو ہے وہ خمیر کر دیتا ہے. مجھے خداوند میں تم پر یہ بھروسہ ہے، مجھے خداوند میں تم پر بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو. پڑھتے جائیے. تو کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے، لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے، لیکن جو کوئی بھی جو تمہیں گھبرا دیتا ہے، وہ خواہ کوئی ہو سزا پائے گا. وہ خواہ کوئی بھی ہو سزا پائے گا. ایک اور حوالہ نکالیے گا. ہم نکالیں گے رومیو کا خط، ہم نکالیں گے
اس کے 8واں बाब चैप्टर 8 निकालेंगे. बहनों में से कोई बुलंद आवाज में पढ़ेगा, पढ़ सकता है? बहनों में से कोई पढ़ सकता है? वर्ष यानी 35 आयत से लेके 39 नंबर आयत तक हम पढ़ेंगे, पूरी आयत 39 नंबर. जी प्लीज. कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत, तंगी या जुल्म, जी, या काल, या नंगापन, या खतरा या तलवार. चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं. चुनाचे पहले ही लिखा जा चुका है कि हम तेरी खातर जान से मारे जाते हैं. हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए. हाँ जी, क्योंकि मुझको यकीन है खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है. हाँ जी, खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यस्सु मसीह में है, उससे हम उस मोहब्बत से हमें ना मौत जुदा कर सकेगी, ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, हाँ जी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीजें, ना हाल की ना इस्तकबाल आने वाली चीजें. जी, ना कुदरत ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक. हाँ जी, गॉड ब्लेस यू. खुदा आप सबको बरकत दे. खुदा आपको बरकत दे. इस कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना आप सबके लिए बाइस से बरकत हो. अजीज़ो तशरीफ रखिए. खुदा आपके साथ. हालेलुया. सब बोले हालेलुया. खुशी से बोले हालेलुया. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. अगर हम खुदा के घर में आए, कलाम सुना और खुश नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है. आमीन. तो प्रॉब्लम का मतलब इसने तो आगाज ही कर दिया कि हमें खुशी नहीं होने दे रहे. हमारे प्रॉब्लम हमें खुदावंद की मोहब्बत में खुश नहीं होने दे रहे. तो आगाज से ही हम फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हैं. तो इसका मतलब है हम खुदा के घर में आके भी प्रॉब्लम में हैं. तो कौन सी चीज, यानी कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? इससे पेश करके हम आगे बढ़े. आज का टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है. हर एक ईमानदार की जिंदगी से इसका ताल्लुक है. और अगर आप इसको अपनी जिंदगी में याद रखेंगे तो आप एक मजबूत और एक बेदार बिलीवर, एक जागे हुए ईमानदार कहलाएंगे. आप ऐसे बिलीवर कहलाएंगे जो अबलीस के जरिया से मगलूब नहीं हो सकते. आपको मगलूब नहीं, गालिब नहीं आ सकता आप पे. आमीन. बल्कि आप गालिब आएंगे. हालेलुया. हालेलुया. हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और आज का टॉपिक हम ले लेते हैं, ईमानदार की जिंदगी में बैरियर्स. ईमानदार की जिंदगी में रुकावटें. बैरियर्स इन द बिलीवर्स लाइफ. बिलीवर्स लाइफ की बात कर रहा हूं, ईमानदारों की जिंदगी में, ट्रू बिलीवर्स. आमीन. बैरियर्स इन द ट्रू बिलीवर्स लाइफ. सच्चे ईमानदारों की जिंदगी में रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स और बॉन्डेजेस कह सकते हैं, बंदिशें कह सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं. आमीन. स्पीड ब्रेकर्स कह सकते हैं. हालेलुया. अब बाइबल मुकद्दस में अगर हम थोड़ा सा मुतालिया करें, हमने अपनी जिंदगी के कई साल और कई दहाइयां जो हैं चर्चेज में पास्टर्स को, लीडर्स को, काहिनों को सुनते सुनते गुजारी. और आपने जब समरीज की निकालेंगे थोड़ा सा गौर करके तो आपको लगेगा कोई भी बिलीवर जो है ऐसा नहीं है कि जिसकी जिंदगी में कोई ऑब्स्टेकल्स, उसकी रुकावटें, बाउंडेजेस ना आए हों. आते हैं. आमीन. मैं रुकावटों को मुसीबतें कहता हूं. पाक कलाम भी रुकावटों को मुसीबतों के जमरे में ही लेता है. हालेलुया. क्योंकि वो रुकावट कैसी जो मुसीबत पैदा ना करे. आमीन. रुकावट तो आपके लिए मुसीबत पैदा करती है ना. यानी आप एक स्पीड के साथ, कॉन्सेंट्रेट के साथ, एक तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ जा रहे होते हैं और साथ में आगे क्या आ जाता है? बैरियर. रुक जा भाई, नहीं जाने देंगे. समझ रहे मेरी बात? या रुक जा भाई, पहले हमारा टैक्स दे. या रुक जा भाई, आगे कुछ और है, रुक जा. बैरियर्स बड़ी तरह के हैं. कुछ बैरियर्स खुदाम लगाते हैं और कुछ बैरियर्स किन्ने पास होना है. क्यों जी? सारे किन्ने लोग ने जो मसीही ने सारे ही जी. किन्ने लोग ने जो सही मसीही ने. पता है मैनू चंगा किया तो हाथ नहीं खड़ा किया. अच्छा किया क्योंकि खुदावंद दे हुजूर दे मज़हब के सामने झूठ नहीं चलता. और अगर हम खुदा से झूठ बोलने वाले ठहरेंगे, खुदा के सामने झूठ बोलेंगे तो फिर लाजमी सी बात है एक चीज है जो फिर आज आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है. ऐसा नहीं है कि शरीयत में मुसीबतें आती थी, नए अहदनामे में मुसीबतें आती. कहता है जो भी करता है मुनासिब तरीके से कर. अगर गैर मुनासिब से कुछ किया तो कमजोर होगा, बीमार होगा और फाइनली मर भी सकता है. क्या है कि नहीं? तो खुदा हमें जो हिंट देता है वो क्यों देता है कि हमने जो कहना है, सही के सिवा कुछ नहीं कहना. आमीन. क्योंकि खुदा रियाकार नहीं, इसलिए उसका खादम भी रियाकार नहीं, इसलिए उसकी ब्राइड चर्च भी रियाकार नहीं है. हालेलुया. साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी. तो क्या है जी ईमानदार की जिंदगी में रुकावटें? हालेलुया. हमने यहां पर क्या पढ़ा? यहां पर
جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے، سب سے پہلا حوالہ کہاں تھا جی؟ گلتیوں کے خط کے اندر کہتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں دور رکھتی ہے، روکتی ہے خدا ان کے پاس آنے سے؟ یہی کچھ کہا اس نے. تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے بلیورز، تمہاری رننگ بڑی اچھی تھی، تمہاری سٹڈیز بہت اچھی تھی، تم نے سب کچھ حاصل کیا، پریزرو بھی کیا، اسے محفوظ بھی کر لیا، لیکن تمہاری دوڑ میں رکاوٹ آ گئی یار. تم نے سب کچھ حاصل کرنے کے بعد گھر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، کمفرٹ زون میں بیٹھو. آمین. اگر کسی نے پچھلی عبادت اٹینڈ کی ہے جمعرات والی تو اسے پتا ہوگا کہ یہاں پر کیسے حالات. تو ایسے حالات دیکھ کر کوئی بہت سے لوگ کہتے ہیں گھر میں بیٹھو یار، ادھر کیا کرنا ہے مصیبت میں، گرمی اور بے سکونی میں. آمین. یہ کون سی گرمی اور بے سکونی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ایمانداروں کی زندگی میں گرمی اور بے سکونی نہیں تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایماندار کی زندگی گرمی اور بے سکونی کے بغیر چلے؟ تو ایسا نہیں ہوگا بھائی. کہیں نہ کہیں پر بے سکونی ہوگی، کہیں نہ کہیں پر موت ہوگی، کہیں مصیبت ہوگی، کہیں ننگ ہوگا، کہیں پرابلم ہوگی، اور یہ سبھی ایمانداروں کی زندگی میں آتے ہیں. ہاللویہ. خداوند کی تعریف ہو. سب بولیں خداوند کا نام مبارک ہو. خداوند کا نام مبارک ہو. میرے عزیزو، اقرار جو کیا جاتا ہے وہ اچھا بھی ہوتا اور برا. اور اگر آپ کہتے ہیں خداوند کا نام مبارک ہو تو خداوند اپنی حضوری سے اس کو سنتا اور آپ کے دلوں پر غور کرتا اور آپ کو اجر ضرور دیتا، برکت دیتا ہے. آمین. ہاللویہ. اور اگر آپ اپنے لیے کچھ برا مانگتے ہیں تو وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. اس نے کہا نا اس کا خون ہمارے اور ہماری اولاد کی گردن پر. تو بولنے سے پہلے ایمان کے ساتھ بولنا جو بھی بولنا ہے. ہاللویہ. تعریف ہو خداوند کے نام کی. کہتا ہے تم تو اچھی دوڑ رہے تھے ایماندار. اینڈ ٹائم میسج بلیورز برائٹ چرچ ہونے کا دعویٰ کرنے والی کلیسیا، 7ویں زمانے اور پھر 6ویں زمانے میں سے نکل کر آنے والے بیچ، تو صحیح دوڑ رہا تھا. کس نے تمہیں آدھا سرد اور آدھا گرم کر دیا؟ کس نے تجھے کہا یہ بھی کر لیتے ہیں اور وہ بھی کر لیتے ہیں؟ کس نے تمہیں کہا کہ اس کے اتنا سا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا؟ کس نے کہا؟ اس نے کہا کسی نے تو کہا ہے. یہ کسی جس نے کہا ہے یہ پتا ہے ادھر میں آیا تھا، آپ کو پتا ہے نا آیا تھا. وہ ایسا تھا کہ اس کی باتوں میں اٹریکشن تھی، کھچاؤ تھا، اور ہوا نے جیسے اسے سنا اسے لگا کہ یہ اچھا ہے، سر اچھا لگا ہے. آپ اگر تھوڑا سا جائزہ لگائیں گے ایشیا کے اندر، خاص طور پر ایشیا کے اندر، یہ ہمارے ایشین جو پاکستان اور انڈیا اور اس طرح کے کچھ ملک ہیں جن کی موسیقی ہمیں سمجھ آتی ہے یا جن کی موسیقی ہم گا بھی سکتے ہیں، اردو موسیقی. آپ دیکھیے، آپ 50 سالہ ہسٹری نکالیے اور گیتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے اور فلمی گانوں کو ایک سائڈ پہ. سوری میں ایسا لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن مجھے سمجھانے کے لیے ایسا کہنا پڑ رہا ہے. فلمی گانوں کا میوزک نکال کے ایک سائڈ پہ رکھ لیجئے اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیجئے. مجھے یقین ہے کہ آپ نے جب دنیا داری کی زندگی گزاری ہوگی تو دونوں کو میئر تو اب تک کیا ہے، کیا کہ نہیں؟ میئر کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ دونوں نو ناپیا تو لیا کس کا میوزک ہائی پوٹینسی کا سریلا ہوتا ہے، بتائیے. کمرشل. گاڈ بلیس یو. کوئی تو بولے ہے، بول ڈرتے نے بولنے. ڈر کس بات کا؟ صاف بولیں جو ہے. کیوں یہ بڑا اتنا سریلا نہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ کہاں پر پرابلم ہے؟ کیونکہ جو محنت اس پہ کرنی چاہیے تھی 99% 9 پوائنٹ اسی پہ کر رہے ہیں وہ دوسرے پہ. کیوں؟ کیونکہ ایک سائنسدان ہے جس نے کہا یار یہ صحیح ہے، یار پیسہ بھی ہے، سٹارڈم بھی ہے کہ نہیں؟ عزت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے. کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ اور 90% لوگ میں کہہ سکتا ہوں آج کی ڈیٹ میں بھی، اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے، اس راہ میں چلتے چلتے ادھر ڈنڈی مار کے نکل گئے. اور پولوس کہتا ہے وہ نکلے تو ہم میں سے، پر ہم میں سے وہ تھے تو یہودا پر ہے، چناؤ کے اندر نہیں تھے. آمین. وہ پیدا تو یعقوب کے ساتھ ہی ہوا لیکن حق برکت کا یعقوب کو ہی ملنا تھا. وہ پیدا تو یوسف کے ساتھ ہی ہوئے لیکن اختیار بادشاہت کا یوسف کو ہی ملنا تھا. وہ پیدا تو حابل کے ساتھ ہوا لیکن خدا نے حابل کے خون کی آواز سن لی. آمین. قائن کے زندہ ہوتے ہوئے بھی آواز نہیں سنی. کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیشہ 2 طرح کی کیٹیگریز رہی ہیں میرے عزیزو. ایک کیٹیگری آپ کے لیے بیریئر بن کے آتی ہے ایماندار کی زندگی میں، ایماندار بیٹے کی زندگی میں بیریئر بن کے آتی ہے. میں سچی بات کہہ رہا ہوں. ان باتوں کو گہرے میں جا کے سوچیں گے تو یہ باتیں آپ کے لیے زندگی لے کر آئیں گی. کیوں؟ ہمیشہ سے ہی خداوند کی سائیڈ کا میوزک، خداوند کی سائیڈ کے لوگ بڑے سادہ مرادہ جنجوی گاشڑیا چلو چل جائے گا ویسے بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ سر ہے ہی نہیں، بہت اچھا سر بھی ہے لیکن کیسا؟ آٹے میں نمک کے برابر.
फिर एक टाइम था जब लोग मजबूर हो गए, उनके पास ना कोई सुर था, ना कोई मौसीकी, ना कोई उस पर लिरिक्स, कुछ भी नहीं था, वो खुद ही कुछ माड़ा मोटा लिखते जिन्नी को इन्फॉर्मेशन बाइबल दी है सी, और उसे फिल्मी तरज पर गीतों को। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या ये बात सच नहीं है? क्या हमने आंखों से कानों से नहीं सुना? इसी अपने इलाके में भी और बहुत सी और जगहों पे भी फिल्मी गानों पर लोगों ने मसीही म्यूजिक को बना। क्या ये सही बात थी? नहीं, क्योंकि जो फूंका जाता है वो बताता है कि क्या फूंका जा रहा है। समझे बात? आमीन। सारंगी की आवाज फर्क है, आमीन, तबला की आवाज फर्क है, गिटार की स्ट्रिंग की आवाज फर्क है, दफ की फर्क है। तो वहां पर जो गाया जा रहा है, किसकी लय पे गाया जा रहा है? बताइए मुझे, वो किसने बनाया था म्यूजिक? उसकी कॉम्पोजिशन, म्यूजिक कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूं मैं, गायकी की बात नहीं कर रहा मैं, शायरी लिरिक्स की बात नहीं कर रहा, पोएट्री की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं उसकी जी तर्ज की, कॉम्पोजिशन की। अब कॉम्पोजिशन क्या है? बातें करूंगा तो फिर बातें रूहानी आपके दिमाग से निकली। ये भी एक वार होता है इब्लीस का। इसलिए उसने कहा बच्चे के सामने केड़ी गल करनी है ते केड़ी नहीं करनी। क्यों भैनों भाइयों? समझदारी करते हैं ना, और समझदारी करनी चाहिए। कुछ चीजें बच्चों का क्यों? क्योंकि बच्चे उसका असर ले लेंगे, अच्छा असर लेंगे, नहीं 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 नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इब्लीस बैठा है ना उसे नेगेटिव असर दिलवाने के लिए। इब्लीस बैठा है भाइयों को नेगेटिव असर दिलवाने के लिए। वो दिमाग में फंसी रहेगी, टॉपिक ज़हन चों निकल जाएगा। क्योंकि भाई होरां गल कीती सी और कैसी गल कीती, क्यों गल ज़हन च रहेगी? क्योंकि किते ना किते असीं भी 90% उससे गंद दे विच सा ना। आमीन आमीन। और भाई ब्राह्मण हमारे जमाने के नबी वो एक बहुत बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं, याद रखें ईमानदारों, ये जो हम छोड़ते हैं पीछे बपतिस्मे के टाइम पर पुरानी इंसानियत को, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। आमीन। वो जब तक हम इस दुनिया से रैप्चर नहीं कर जाएंगे, पीछा छोड़ेगी नहीं, हमारा लगी रहेगी पीछे। और नबी के पीछे भी थी, और उसका साया पीछे था, और साए की हालत में ये होती है, ये रूह की हालत में होती है। आमीन। इसलिए अड्डा इजी उजी ना हो जो अब तुम ला लिया सत्ते खा रहा हूं, सत्ते की होच नहीं होनी तो असली जंग शुरू हुई है ताड़ी। जे तुसी समझो ते जो कोई नहीं, चौधरी साहब ते शुरू तो साडे ते है भी सन हैं, असी शुरू तो कमी इंसान, सॉरी मेरियां गल्लां नूं माफ करियो। आमीन। हैं शुरू तो ही असी लोकां दी सेपां करना, केड़ी गल है इंज ही चलन दिओ, तौबा दिओ कर लिए, चुश्मा भी ला चुश्मा। कुछ लोग कहंदे बपतिस्मा नहीं चुश्मा, बब चुश्मा। समझ आ रही गल दी? आमीन। इस समय 35 नस्लां गुजर गई, उंज दे उंज साई ते जांदे पादरी के भाई जी साडे भी बच्चे साई कर दो, कहते हैं ऐसे लोग। आमीन। मेरी गल्लां समझ आ रही हैं तुहानू? खुदा बरकत दे। ये बातों का एक तरीका है, यीशु भी ऐसी बातें करते थे। तो क्या है? ईमानदार की जिंदगी में रकावटें हैं भाई। ईमानदार की जिंदगी के पीछे पुरानी रूल लगी हुई है। हाँ, खुदावंद ने हमारे गुनाहों को धो दिया, किरमजी थे धो दिया, पाक कर दिया, लेकिन हम हालते जंग में आ गए। क्या ख्याल है? अफसर के खिलाफ अर्जी तो छड़ेगा तुम नहीं छोड़ेगा। पावर में ज्यादा हो सकता है, तालीम में भी ज्यादा हो, पहुंच में ज्यादा हो, पैसे में ज्यादा हो। यहां से दाल नहीं गली उसकी तो कहीं और से गला लेगा। आप कहां से गलाएंगे? आमीन। बताइए मुझे। तो आपने जंग छेड़ी है उस फरिश्ते के साथ जिसने खुदा के साथ छेड़ दी थी ऊपर। ते एवें सुत्ते मजे कर रहे हो तुसी। इतवार नूं फिल्म देख के अद्धी आ गई, अद्धी इबादत च, अद्धी फिल्म इबादत दी ते अद्धी ये भी तो एक है ना, विजुअल है ना। वो भी विजुअल है, अभी विजुअल विजुअल कहते हैं मंजर, सीन। क्या ख्याल है? मेरी बात को समझ रहे हैं? ते अद्धी पचद्धी वाली गल दे विच कुछ नहीं बनता। अद्धी फिल्म दिमाग च फसी हुंदी है ते अद्धी कुछ लोग इत्थों जाके अद्धी वेख लैंदे ने, कहंदे रोको इत्थे ही बाद च जाके वेख लांगे। समझ आ रही है कि नहीं? खुदावंद तुहानू बरकत दे। पौलुस कहंदा मैं तुहानू तंबीह करन वास्ते, तुहानू हाँ पाक कलाम च कहंदे पौलुस तुहानू शर्म दिलाण। शर्म कोई बुरी चीज थोड़ी है कि तुहानू शर्म आ जाए, छोटी गल है यार। ते जिन्नू नहीं आउंदी ओनू असीं सारे कह रहे ने तैनू वेला शर्म नहीं आउंदी, कहने आ कि नहीं? ते अपने आप नू आंदी है कि नहीं जी हमें तो आती है सर, आती है तो फिर नजर नहीं आ रही। किधर है शर्म? गल की गल समझ रहे हो ना? अब बातें इस पे आगे निकल जाएंगे, लेकिन हम टॉपिक पे रहेंगे। हालेलुया। ये बातें जरूरी थी, ये बातें जरूरी थी। साई होने से निकले, मसीही है तो पीछे साया पड़ा हुआ है, अभी भी आपके दिमागों पर जोर करेगा, और जंग अभी भी लगी हुई है।
सिर्फ आपका दूसरा जन्म हुआ है मेरे भाई बहन, प्यारे बच्चों, आपका दूसरा ही पैदाइश हुई है, जो कि हुक्म था लाजमी के पानी और रूह से पैदा होना जरूरी है। आमीन। और आपने पूरा किया, जाओ सारी दुनिया में उनको बपतिस्मा दो, कहा था कि नहीं? शागिर्द बनाओ, बाप बेटे के नाम में बपतिस्मा दो, कहा था कि नहीं? तो हमने वो काम किया, कितने लोगों ने कर लिया वो काम? हाथ खड़ा करो। गॉड ब्लेस यू, खुदा साथ हो। अब हम नई पैदाइश में आए, और जब नई पैदाइश में आए तो हमने समझा सब सही है। सब सही नहीं है, पीछे प्रॉब्लम लगी हुई है। आपने, है ना, 4 आंखें कहते ना करके रखनिया ने, बात समझ रहे? अब ये जो 4 जानदार थे, इनके मुतालिक लिखे हैं, इनके इर्द गिर्द हर तरफ आंखें ही आंखें थी। ये 4 जानदार क्या है, मैंने सिखाया था आपको, एक बार समझाया था। इनका मतलब क्या है? 4 जानदार, इनके ओपोनेंट कौन है, इनके मुखालिफ कौन आए हैं? 4 घोड़े। 4 घोड़े भी ताकतें हैं और ये 4 जानदार भी ताकतें हैं। हमारी ताकत कौन है? पालूस, मुकद्दस पालूस कहता है, खुदा के रूह की अदा से लिखता है, न जोर से न ताकत से, बल्कि खुदा के रूह से। वो हमारा जोर है, वो ताकत है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। सब बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो। तो मेरे अजीजों, ये 4 जानदार 4 स्पिरिट्स हैं, 4 रूहें हैं जो खुदावंद ने अपने सच्चे ईमानदारों के लिए रखी हैं। आमीन। और वो जोर के साथ आती हैं और वो नहीं डरती, वो कहती हैं कर ले जिन्हें मर्जी गुना पट्टी दी अग तेज, हमने नहीं करना सजदा, मार दे हमको। आमीन। वो बैल की रूह ज़बह होने की क्या थी? ज़बह होने की रूह, हम यीशु के लिए मर जाएंगे, और बहुत से लोग मर गए यीशु के लिए। आमीन। ये इंसान का सा चेहरा कैसी रूह है? हिकमत के साथ, मुकाशफात के साथ। हालेलुया। गुफ्तगू करने वाले, नहीं डरेंगे, हम वही बयान करेंगे जो मुकाशफा में बयान करता है। यह है दलेरी का रूह। ये 4 दलेरी की रूहें हैं। ज़बह होने के लिए दलेरी चाहिए। यीशु जब ज़बह होने को गया तो दलेरी थी। हालेलुया। उसे पता था मेरी मिनिस्ट्री क्या है, मैं दलेर हूं। आमीन। क्या आज के प्रिजाइडर को पता है मेरी मिनिस्ट्री क्या है? क्या एल्डर को पता है मेरी मिनिस्ट्री क्या है? क्या वर्शिपर को पता है मेरी मिनिस्ट्री क्या है? क्या म्यूजिशियन, तबला बजाने वाले को, ढोलक हारमोनियम बजाने वाले को पता है मेरी मिनिस्ट्री क्या है? खिदमत क्या है मेरी? क्या हम अपनी खिदमत को प्रिविलेज देते हैं? अगर नहीं देते तो आज से देना शुरू करें। यीशु मसीह कौन सी खिदमत के साथ था? अल्टीमेटली, एब्सोल्युटली उसमें सारी खिदमत थी, सारी ही थी। वो काहिन भी था, वो दूल्हा भी था, वो भाई भी था, वो बाप भी था। आमीन। वो खुदा भी था, वो रूह भी था, वो कलाम भी था। हालेलुया। वो जिंदा और करते जाएंगे तो बहुत सी निकलेंगी। आमीन। क्यों इतना कुछ था? क्योंकि कुछ फर्क नहीं था। पुराने अहदनामे का यहोवा नए अहदनामे में यीशु बन के आ गया। इसलिए पुराने अहदनामे का यहोवा भी था, वो जिंदा शाख भी था, वो वाहिद भी था, है ना, वो यहोवा निस्सी भी था, यहोवा शालूम भी था, यहोवा राफे भी था, बहुत कुछ था वो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह भी बहुत कुछ था, सब कुछ था मैं कहूंगा। और अगर वो सब कुछ था तो उसमें से उसकी दुल्हन निकली, तो वो क्या होगी? सब कुछ। वो सब कुछ थी, वो सब कुछ है। आमीन। मेरे कहने का मतलब वो सब कुछ है, दुल्हन भी, क्योंकि उसका दूल्हा सब कुछ है। और आप याद रखिए, आप इब्लीस की रुकावटों के खिलाफ तभी खड़े होंगे जब यीशु की तरह सब कुछ होंगे। यीशु सब कुछ था, फिर भी उसे इब्लीस ने रोका। इसमें आपने पढ़ा, जो तुम्हें घबरा देता है वो चाहे कोई भी हो सजा पाएगा। तो आप लूका की इंजील में, मत्ती की इंजील में जाएं, अनाजील के अंदर, जब यीशु मसीह बागे गतसमनी में है, लिखा यीशु इस कदर घबराया हुआ था कि मरने को था। कौन घबरा रहा था उसे? इब्लीस। यहां पर घबराहट कौन सी है? यहां पर घबराहट का मतलब क्या है? अपनी खिदमत से पहले मर जाना, अपने टारगेट से पहले गिर जाना। इब्लीस उस टारगेट से जाने से पहले ही आपको मार देगा। यीशु को यही करना चाहता था वो। आमीन। और यीशु इस वजह से घबराया हुआ था कि ये क्या हो रहा है, मेरी तो मिनिस्ट्री नामुकम्मल रह जाएगी। मैं यीशु की खिदमत के लिए निकली थी, मेरी मिनिस्ट्री तो यहीं पर रह जाएगी। उसने कहा, खुदावंद है बाप, अगर हो सके तो ये मुकाबला बड़ा सख्त है, अगर हो सके तो ये वाला प्याला, ये प्याला पता ना मुसीबत, 7 प्याले 7 मुसीबतें साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। जान से आप समझते हैं, ये वाली क्लास जो आप ले रहे हैं ना, ये वाली जो टीचिंग ले रहे हैं, घूम के देख लो जरा,
ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਬੋਲੇ खुदा का नाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो यीशु के नाम, तारीफ। हम सबका उस्ताद खुदावंद यीशु मसीह और रूह कुद्स है। हालेलुया, वो मुझे भी सिखाता आपको। तो क्या हुआ वहां पर, वो कहता है ये प्याला मुझसे टल जाए खुदावंद, लेकिन उसने कहा ऐ खुदावंद अगर तू चाहता है कि इसमें से गुजर के जाऊं, टफ टाइम में से होकर जाऊं, इस बैरियर को तोड़ता हुआ जाऊं, तो खुदावंद मेरी नहीं बल्कि क्या दुल्हन ऐसा कहती है, खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, जलाल खुदावंद के नाम को मिले, खुदावंद का रूह आपकी जिंदगी को बदले, जोर दे, आमीन, बेदारी दे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ईमान की जिंदगी के अंदर उस बैरियर से नबर्द आजमा हुआ, उस बैरियर से कंपटीशन किया, मुकाबला किया, और फिर फाइनली यीशु मसीह के बदन को, क्योंकि बदन में था और बदन पर इब्लीस का जोर है, खुदा ने फरिश्ता भेजा और वो उसे क्या दे रहा था, तकवीर। अगर यीशु को फरिश्ते की, यीशु की बॉडी को, यीशु की रूह को नहीं, यीशु की बॉडी को। यीशु की रूह का मतलब यह है कि जब खुदा यीशु में था तो खुदा था यीशु, और जब खुदा अलग हुआ आगे गसमनी से स्टार्ट करके, तो फिर यीशु कामिल इंसान रह गया। आमीन। तो कामिल इंसान, आपको पता नहीं एक और बंदे के मतलब कहा गया कामिल, हालांकि वो नस्ल आदम से था, लेकिन उसे टाइटल दिया कामिल इंसान का। वो कौन था? कौन था? पढ़ा हुआ है आपने, मैंने पढ़ाया है, अयूब। अयूब की किताब के मुतालिक यह है कि सब किताबों से पहले की डिटेल है, ईमान पैदाइश से भी पहले की डिटेल है। ये जो विजुअल मिल रहा है अयूब का, ये बहुत पुराना विजुअल है। आमीन, हालेलुया। साथ रहिए, वो कामिल एक टाइटल के तौर पर था अयूब, लेकिन यीशु मसीह कामिल तौर पर कामिल था, टाइटल में नहीं, हकीकी तौर पर। क्यों? क्योंकि यीशु नस्ल आदम की नस्ल, करप्टेड ब्लड से नहीं आया। अयूब करप्टेड ब्लड से आया, उसके ब्लड में करप्शन थी। करप्शन कौन सी? जो आदम में हवा और आदम के जरिए से हुई थी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आदम और हवा का हिस्सा नहीं था। मैं ये कहूंगा यीशु मसीह यूसुफ और मरियम का भी हिस्सा नहीं था। हालेलुया। हमारे कुछ कैथोलिक भाइयों को और कुछ मरियम प्रस्त लोगों को बड़ी तकलीफ होती है इस बात से। मैं उनको कहूंगा थोड़ा दिमाग को खोलें, खुदा आपको बरकत दे। आप खुदा के बेटे बेटियां और मसीह की दुल्हन है। आप मुकद्दसा मरियम की दुल्हन नहीं है, ना मुकद्दसा मरियम के बेटे हैं आप। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। मुझे बताइए, आदम में क्या वादा हुआ था कि एक माँ का बेटा होगा या एक औरत की नस्ल होगी? क्या कहा था खुदावंद ने? मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान में, कहा था कि नहीं? तो यीशु ने सारी उम्र क्या कहा मुकद्दसा मरियम को? ऐ औरत, मैं औरत की नस्ल। उसे मां नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो उस आयत को लेकर चल रहा है। आपका दुल्हा उस आयत को जो उसके मुतल्लिक लिखी गई उसको पूरा कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा मेरे जज्बात क्या कहते हैं, इत्थों पैदा हुए मां को। उन्हें क्या मेरे मुतल्लिक कहा क्या गया है? मैं औरत की नस्ल, औरत की नस्ल। इर्द गिर्द के लोग कहते रहे तेरी मां तेरे भाई आए। उसने कहा कौन है? समझ आ रही है? गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बातों को समझें। ये ना मुकद्दसा मरियम की मुखालफत है, ना ही यीशु मसीह के बेटा और उसकी मां होने की मुखालफत है। नहीं, ये रेवलेशन है। रेवलेशन को पकड़े। बाइबल मुकद्दस रेवलेशन के बगैर कुछ भी नहीं, और बाइबल मुकद्दस रेवलेशन के बगैर आती ही नहीं है। इसीलिए जब आई तो रेवलेशन को लेकर के आई। हालेलुया। साथ रहिए। औरत के मतलब वो औरत की नस्ल से होगा, यीशु मसीह के मतलब कहा गया। और जब वो पैदा हुआ तो उसने औरत को, वो नस्ल था, औरत ही कहा उसे। आमीन। उसको औरत कहा, ऐ औरत, ऐ औरत। और जब बेटा और मां का रिश्ते की बात आई तो उसने स्लीप पर कहा यूहन्ना इसे ले जा अपने घर। ऐ औरत, ये तेरा बेटा। ये तो नहीं कहा है मां आज तुम नुमान है, मैं नहीं बेटा तेरा, ऐ बेटा। ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कह सकता था। क्यों? हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि खुदा मना कर रहा होता। फिर की हो गया भाई जी, सुबह ला लो शाम ला लो, गल समझ रहे? मैंने बार बार गल करनी पैंदी है। नहीं फिर कोई नहीं हो गया, खाते वो ही है, मैंने पता खादी जानी है। इशारबानी है, सुबह रुबानी, एक्चुअली सुबह रुबानी लई जानी है, खादी भी जानी है, वो ही सब कुछ है, लेकिन शाम नू नहीं है ना। इस मारे दो तो फिर सुबह रुबानी कह के दो, वो मैनू मैं खा लेना। नहीं, वो तो नहीं। अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं, सुबह रुबानी भी छोड़े, इशारबानी भी छोड़े, पाक शराकत है। एक किथे लिखा है? किथे लिखा है पाक शराकत? कोलों ही नहीं जी, नहीं साडे लोग पढ़े लिखे ने, साडे पास्टर पढ़े लिखे, फादर ने, फादर तुहानू पता 10 साल ला के फादर बनदा है।
50 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਣ ਜੇ ਪੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਲਾਏ ਯਸੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਸਮਝ ही नहीं सकते समझेगा कौन जो उस ब्राइड का हिस्सा होगा वो समझेगा यार है तो मेरी जगह वो बोलेगा यार ये तो मेरी जगह है अच्छा कहते फिक्स हो जाओ अच्छा ब्राइड का एक नाखून रह गया अच्छा ये मैं था चलो जी इधर आ जाओ अच्छा ब्राइड का है ना ये बाजू था अच्छा इधर मैं था चलो मैं इधर आ जाता हूँ लोग की तो अपनी जगह फिल कर रहे हैं कौन ब्राइड के लोग वो कहते हैं मेरी जगह किधर है समझ रहे हो ना तो ब्राइड में आपकी जगह किधर है मैंने बताया था ना भाई ब्रैनम ने एक मिसाल दी कि किसी मुल्क के अंदर धोबी क्या करते थे कि जब कपड़े लेते लॉन्ड्री में तो वो कुछ लिखते नहीं थे उनके पास कुछ पेपर्स होते थे पेपर को फाड़ के जो भी आता उसे एक हिस्सा देते उसको और एक हिस्सा उसके सूट के साथ लगा देते और वापसी आते तो वो हिस्सा पार्ट है ना हिस्सा उसको बकिया भी कहते हैं बकिया समझते हैं ना इसका बाकी किधर है इसका बाकी हिस्सा किधर है वो फिक्स करता तो कहता हाँ जी अच्छा ये उसके साथ है सूट के साथ जो लगा होता उसके साथ फिक्स करता और अगर वो फिक्स नहीं होता तो आप जितना मर्जी कहें वो सूट मेरा है वो कहेगा नहीं ताड़ा हिस्सा नहीं इतना मिलता वो कपड़े आपको नहीं वो पोशाक आपको नहीं मिल सकती वो रुलकुल्स नहीं मिल सकता मिल ही नहीं सकता हाँ उत्ते आ सकता है इत्थे नहीं आ सकता मिलना किसे कहते हैं मिलना किसे कहते हैं यहाँ पे आने को मिलना कहते हैं ये हर किसी को है इन्हीं को समझते सारे को है ना कई गैर ज़बाना बोलते हैं कि नहीं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं गैर ज़बानों की मुखालफत में नहीं हूँ ना ही रुलकुल्स की मुखालफत में हूँ मैं ये कहता हूँ कि पाक कलाम में लिखा आखिरी ज़माना में झूठे मसीह का मतलब क्या है झूठे मसा शुदा लोग उठ खड़े होंगे किस बात से मसा होते हैं आप तुझे के अंदर रूह आके मसा करता है रूह कित्थों निकलता है इत्थों ये है रूह जिसके पास ट्रू रेवलेशन नहीं उसके पास ट्रू सच्चा रूह किधर से आएगा क्या ख्याल क्या लिखा है पाक कलाम में काहिन के लब मार्फत को मैं मार्फत किसे कहते हैं अंग्रेजी में दो मतलब है इसके द विजडम ऑफ गॉड मार्फत आरफाना से निकला है आरफात यानी आसमान से इल्हाम यानी कि रहमा जो आसमान से आता है इंसान के लिए फ्रेश मन्ना तो उसको कहते हैं मार्फत की बापा जी तुसी बड़ियां मार्फत दी गल्लां कर रहे हो समझ नहीं आंदियां कोई खुलियां खुलियां सीधियां सीधियां करा करो कहते हैं कि नहीं तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे बच्चा कुछ कहे तो बड़ा की करे क्यास करे कि कहंदा की पिया यार शीरखारों के मुंह से बहे उसने तख्त वालों को गिराया और हैं हम बच्चों पर वो बातें उसने कहा बच्चों पर जाहिर की बच्चा कोई बने भी दसे ना सारे ते पापा बन देने सारे कहते मैं पास्टर हूं ना फादर हूं ना मैनू पापा कहो फादर कहो और कुछ लोग कहते भी हैं पापा जी वो पापा जी आए थे पापा जी अभी आज पापा जी का चर्च नहीं लगा पता है ना हाँ मैं गल्ला खोलना नहीं चाहता खुली हुई हैं आपके सामने जितने हेड होते जाएंगे उतने पापा होते जाएंगे मुझे पापा से कोई तकलीफ नहीं है लेकिन पापा भी तो रेवलेशन खोले ना क्या ख्याल है यीशु मसीह ने कहा वो अंधे हैं सीधी सीधी बात और राह दिखाते हैं तुम्हें अंधों की तरह खुद भी डूबेंगे तुम्हें भी लेके डूबेंगे इसलिए पापा किनू कहते जरा सोच समझ के क्यों अन्य पापा तो नहीं कही जाते पे आमीन साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी रुकावटें ईमानदार की जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स रुकावटें बैरियर्स कुछ भी कह लें ये आते हैं मेरे अजीजों तो हमने यहां पर क्या देखा क्या समझा क्या सीखा कि उसने कहा तुम तो अच्छी दौड़ रहे थे किसने तुम्हें रोक दिया ये तरगीब तुम्हारे बुलाने वाले जिसने तुम्हें कॉल किया कौन कॉल कर रहा है खुदावंद कॉल कर रहा है खुदावंद कलीसियाओं में से कॉल कर रहा है बुला रहा है उसने तो तुम्हें नहीं कहा कि ठंडे हो जाओ थोड़ा इजी हो जाओ नो प्रॉब्लम उसने कहा दौड़ो और पौलुस कहता है मैं अच्छी दौड़ चुका हूं और अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं वो लड़ भी रहा था और दौड़ भी रहा था इसका मतलब समझते हैं इसका मतलब यह है कि आप खुदावंद की रास्ते में जब नई पैदाइश लेते हैं तो मसीह के ट्रैक पर आते हैं जिस पर आपको दौड़ना है और मंजिल को तय करना है इस रास्ते में बैरियर्स हैं जिससे आपको कुश्ती करना और उसने कहा ये कुश्ती जो है हमारी खून और बदन से नहीं है उसने कहा कुश्ती जो है हमारी खून और बदन से जंग नहीं है जंग कुश्ती वो अलग बात है कुश्ती में कभी कोई नीचे और कभी कोई ऊपर लेकिन फाइनली खुदा आपको जिताता है क्योंकि उसने कहा है तुम्हारे साथ वो है जो उससे बड़ा है जो दुनिया में है तुम्हारे साथ वो है इसलिए जीतोगे तुसी होई जीतोगे तुम ही लेकिन अगर आपने तसलसल कायम रखा तो फिर जीतोगे तो कौन है ये तुम्हारे बुलाने वाले की तरकीब तो नहीं उसने तो तुम्हें इस तरह की कोई बात नहीं बताई आमीन तो कुछ लोग दौड़ते दौड़ते रुक जाते हैं रोकने वाला होता है कोई
اور وہ کون ہوتا ہے؟ آپ کی پرانی انسانیت. وہ ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی, وہ ہوتا ہے آپ کا احباب جو آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے. اس نے کہا تھوڑا سا خمیر, یہ ہے رکاوٹ. سارے گندے ویڈ, ساری کلیسیا, برائڈ چرچ, سارے دے سارے نوں اونجدا ہی کر دیندا ہے. ہن اس گل تے گل کیتی تے گل پھر کافی اگے نکل جائے گی, لیکن میں اتوں تھوڑی جی کر دینا گل. آمین. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر جگہ کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے. شادی تے جاندے ہو تو کپڑے شادی والے پا کے جاندے ہو نا. چرچ چاندے ہو تو کپڑے چرچ ونگراں دے پانے چاہیے, کلیسیا دے, جہدے نال تانوں کسے نوں کوئی جمپ نہ لگے, چاہے وہ میل ہوئے تو پاویں فیمیل ہے. کیونکہ اگر تسی کسی خدا نہ, یہ تو آپ ایک کامن بلیور کی بات کر رہے ہیں نا, ہم کامن جڑے بلیورز ہیں, لیکن اگر تسی اسپیشل ہو, کوئی لیڈرشپ چو, کسی پریزائڈنگ چو, ایلڈرشپ چو, پاسٹرشپ چو, خود بھی انوالو ہو میں, اور اسی طرح آپ ورشپ کی اس میں ہیں کہیں لیڈرشپ میں, کوئی بھی چیز جو اٹھ کے آپ کرتے ہیں یا آپ کے لیے آپ کے پیچھے لوگ کریں گے یا آپ کے انتظار میں ہیں, تو آپ اگر کچھ ایسا ڈسپلے کیا ہوگا اپنے اوپر, ایسا کچھ کیا ہوگا, تو لوگ آپ کو دیکھ کر اثر لے لیں گے, اور ابلیس آپ کے ذریعے کام کر جائے گا. آپ کا قصور صرف اتنا ہے کہ آپ کچھ ایسا لے کر آ گئے جو کہ لے کے آنا نہیں چاہیے تھا. سمجھ آ رہی گل دی؟ کیا بچوں کو اسکول میں موبائل کی اجازت ہے؟ نہیں. تسی دیندے کیوں نہیں؟ دیو یار, کیڑی گل, گھر بھی تے ویندے نے. کیوں بھائی مشتاق ذرا نال لو, جلدی جلدی نال لو, دے دیا کرو, کیڑی پرابلم ہے؟ سمارٹ فون اپنا کٹ کے انہوں دیا کرو, آپ ہی بٹن والا رکھے. بابے نے بہت بٹن والے رکھے ہوندے نے, اے ابے نو کیڑی عقل ہے, اما نو کیڑی عقل ہے, بٹن والا دے دو. یہ ہوئی گل جے, انہاں کی کرنا ہے. اچھا تساں کی کرنا ہے؟ سمجھ آ رہی نا؟ تو مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں دیتے موبائل, اسمارٹ فون. کیوں نہیں دیتے؟ گھر چ دے چھڑ دیو, اتنے گھر چ بھی نہیں دیندے بہتی باری, کتے بگڑ نہ جائے. ہاں جی کہنے نا, بگاڑ نہ آ جائے. بگڑ جائے گا تو پھر ہاتھوں گیا. اتنا فکر لگا, جے تسی خدا دے ہاتھوں نکل گئے تو پھر انہوں نہیں فکر لگا ہوا ہے نا. وہ ہماری ماں بھی ہے, باپ بھی ہے, بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے اس میں, اور اس نے اپنا بیٹا دے دیا اپنے بچوں کے لیے. آمین. جی اٹھنے والوں میں پلوٹھا بڑا پتر, اپنے سب بہن بھائیوں کو ہم میراث کرنے کے لیے اس نے اپنی جان دی. انہوں نے کہا, پیو نے کہا پتر انہاں دی جگہ قربان ہو جائے, انجنیاں بچنا لے. سمجھ آ رہی نا؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, سن لو. کہ جانا دے گھر ہی ہے نا, تساں اور کتنے جانا. گاڈ بلیس یو, خدا ان ساتھ ہو. کہیں پر 2 بھائی تھے. ایک بھائی برائی میں چلا گیا, اس کے بھائی نے بڑا روکا. اس نے کہا نہیں. وہ گیا, برائی کی, کسی کو مار دیا, قتل ہو گیا, جیل میں چلا گیا. جیل میں چلا گیا تو بھائی کو پتا چلا. اس نے اپنی جائیدادیں فلانا ڈمکانا بیچ کے اس کو کیا کر لیا. جب اسے ملنے کے اس کے بھائی مجھے باہر نکال لو, میں یہاں پر دم گھٹ رہا ہے میرا, یہ کدھر آ گیا ہوں. کہتا میں تمہیں بتایا بھی تھا. کہتے بس معافی اور آئندہ نہیں ہوگا. اسے نکال لیا. جب نکال لیا تو کچھ قصہ مختصر یہ, جب نکال لیا تو اسے ایک بات کہی, اس کے ذہن چ رکھی کہ تیرا ایک کوئی بھرا ہے, تے اگر مینوں کچھ ہو گیا تو تینوں چھڑان کسے نہیں آنا. اس مرے گناہ نہیں کرنا, اس مرے گناہ نہیں کرنا. گل سمجھ رہے ہو؟ وہ کچھ ٹائم پھر معاملات چ پیا تے وہ ایک قتل ہو گیا. وہ بھرا نے وہ قتل اپنے سر تے لے کے آپ ہی کتنے چلا گیا, وہ جگہ تے جیل چلا گیا. تے انہوں پھر اندروں جیل دے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہون پیچھے چانس, یہ میں ہی سا جنہیں تیرے واسطے قربانی دے دیتی ہے. ہون پیچھے نہ تیرا بھرا ہے تے نہ کوئی پیو بھی آن والا. سمجھ آ رہی گل دی؟ اس مارے اج تو بعد کان کھول کے سن لے, چانس بالکل نہیں. تے میرے تے تہاڈے یسو بھی ساڈا بڑا بھرا بھی سی. آمین. او دے تو علاوہ کوئی نہیں ہن چانس کہ کوئی آئے گا ساڈے تے جان دے گا. چانس کوئی نہیں. بات میری سمجھ رہے؟ چانس کوئی نہیں. اس نے جان دے کے ہمیں خرید لیا ہے اور اپنی میراث میں شامل کر لیا ہے. اب اگر ہم نے کوئی کرتوت گھولا تو پنش آئے گی. آپ کو پتا ہے 5 کنواریوں پہ پنش آئے گی, ان کے گلے کاٹے جائیں گے, ان کو قتل کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے جان دی ہے. اس کی باتوں پر عمل کریں. بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. میرے عزیزو, ایماندار کی زندگی میں بیریئر, کیا آپ کی ایماندار زندگی میں بیریئر نہیں آتے؟ جب آپ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کہ رکاوٹ نہیں آتی؟ آتی ہے. کہاں سے آتی ہے؟ یہاں سے آتی ہے. سب سے پہلی رکاوٹ آپ کا دماغ کہتا ہے ایزی ہو جا,
और अगर कहीं आप दलेरी करके उठ भी जाते हैं तो पापा कहता बह जा आराम ना, मामा कहती बह जा आराम ना, भरा वड्डा कहता बह जा आराम ना, पुप्पी कहती बह जा आराम ना। ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਪਾਦਰੀ, ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਭੈਣ ਬਣੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੌਣਕ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ कपड़ियां च रौनक। समझ आ रही बात? रौनक क्यों नहीं? क्योंकि रौनक तो यहाँ पे घुसी हुई है। ये रौनक सही होएगी तो कपड़े भी सारे ठीक नजर आएंगे। समझे मेरी बात को? पौलुस कहता है दुनिया की मानद मत बनो, उसकी शक्ल क्या है? दुनिया की बिगड़ती जाती है। आमीन। कौन है जो तुम्हें रोकता है? इसका मतलब कोई ना कोई है जो हमें रोकता है। आमीन। मुझे बताइए, छप्पड़ के अंदर बहुत से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो गंध से भरे होते हैं, लेकिन उस छप्पड़ के अंदर कोई ऐसा फूल है, ऐसा बीज है जो निकल के बाहर आता है, जो रुकावटों को, उस गंदगी को चीरता हुआ बाहर निकलता है, और फिर ऊपर सूरज होता है, खुदावंद आफताब सलाकत, उसकी रोशनी में जाता है और वो खिल जाता है। वो जमीन की रुकावटों को, छप्पड़ की गंदगी की रुकावटों को तोड़ के बाहर आता है। और भाई ब्रानम कहते हैं वो वाला जो वो शारून का गुलाब आप भी हो सकते हैं। आपके इर्द गिर्द सारा छप्पड़ है, गंद है, ऐसा नहीं है कि आप इससे बाहर हैं, लेकिन आप खुदा का बीज हैं। आपका खिलना, आपका निखर कर बाहर आना इस बात की दलील होगा कि आप खुदावंद के हैं। आपकी खूबसूरती बता रही होगी, आपकी यूनिकनेस बता रही होगी, इनफरादियत बता रही होगी कि आप किसके हैं। हालेलुया। इसलिए एक बिलीवर भी ऐसा ही है, वो दुनिया की गंदगी में रह रहा है। आमीन। ये दुनिया अब तबाह होने के करीब है, उसमें रह रहा है, लेकिन वो क्या है? कमल है। आमीन। इस छप्पड़ में रहते खुदा का क्या है? वो कमल का फूल है। आमीन। जो कि उस सारे बैरियर्स को तोड़ के बाहर आया है। हालेलुया। आप जानते हैं मुकाशफा की किताब में क्या लिखा है? लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक कि उसके, यानी मसीह ने कहा मेरे बंद किए हुए को कोई नहीं सकता, जिसको मैं बंद कर देता हूं। उसने कहा दानियल इसको बंद कर, मोर बंद कर, इसको कोई नहीं खोलेगा, मैं 7वें जमाने में खोलूंगा, आखिरी जमाने में। यूहन्ना को बोला 7 गरजें मत लिख, बंद कर, मोर कर और छोड़ दे, ये 7वें जमाने के कलीसिया फरिश्ता के नरसिंगा फूंकने के जमाने में खुलेंगे। बंद कर दिया। अब बंद था और जब खोलने पे आया तो कोई रोक नहीं सका। मेरी बात को समझ रहे हैं? खुदा जब आपको एक ईमानदार की जिंदगी देना चाहता है तो आपको ताकत भी देता है, लेकिन उसने कहा मांग तो तुझे, हम मांगते ही नहीं है। हम कहते हैं ये क्या बात हुई यार, ऐसी बात, ठीक है हम ईमानदार हैं, हो जाएगा। नहीं, हो नहीं जाएगा, आप मांगेंगे तो फिर होगा। हालेलुया। आपको पता है जब अलीशा के घर में बच्चा नहीं था तो जवानी के दौर से वो मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? औलाद मांग रहे थे। मांगना नहीं छोड़ा। समझ आ रही गल दी? अब्राहम जो कि कौमों का बाप होने वाला था, जवानी के अयाम से क्या कर रहा था? अब्राहम खुदा से मांग रहा था। हालेलुया। मांगना नहीं छोड़ा। लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो मांग रहा था। हालेलुया। दानियल दुआ कर रहा है और उसने दुआ करना नहीं छोड़ा, और ऊपर से आसमान से फरिश्ता आया और उसने कहा तेरे और तेरी कौम के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं। मैं तेरी जब तू दुआ कर रहा था तभी सुनी गई थी, लेकिन मुझे फारस के मुवक्किल ने क्या किया है? रोका है। फारस के मुवक्किल ने मुझे क्या कर दिया? रोक दिया। मुझे एक मुवक्किल यानी एक मुखालिफ मसीरू ने रोक दिया, यानी फरिश्ते ने रोक दिया। डीमंस भी, डीमोनोलॉजी के अंदर आप पढ़े तो ये फरिश्ते भी अब्लिसी फरिश्ते भी हैं जो रोकते हैं, रुकावटें हैं। और वो अगर फरिश्तों को रोकते हैं तो हम जो जमीन पर हमें क्या नहीं रोकेंगे? रोकेंगे। लेकिन जैसे फरिश्ते जंग करके और उस बाउंड्रीज को, उससे रुकावट को, उस बैरियर को तोड़ कर आते हैं। आमीन। जो अबलीस के खड़े करता है। हालेलुया। अबलीस के किले हैं, जो तारीकी की रूहानी फौजों के किले हैं, उनको हम ढाते हैं। पाक कलाम में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि हम ढाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हम उन रुकावटों को ढा देते हैं। अगर फरिश्ते ऐसा कर सकते हैं तो ईमानदार के लिए पौलुस कहता है कितना जरूरी है। आमीन। क्या आप जानते हैं कि ये जो हमारे 7 कलीसिया ज़मानों में फरिश्ते आए, जो लोग थे, पहला बस पौलुस रसूल था, दूसरा अरेनियस था, और फिर चलते चलते भाई विलियम ब्रैनम तक, क्या इनकी जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स नहीं आए? रुकावटें नहीं आई? भाई ब्रैनम अपने एक मैसेज में कहते हैं कि मुझे सूखे बिस्किट 2 दिन 4 दिन पुरानी रोटियां खाकर गुजारा करना कबूल है, लेकिन मैं किसी ऐसी मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं होऊंगा जो खुदा के कलाम से बाहर बातें करती है। कहता है नहीं, मुझे गवारा ही नहीं है। और फिर दाऊद क्या कहता है? कहता है मैंने सारी जिंदगी, मैं बच्चा था, बूढ़ा जवान हो गया हूं, मैंने सारी जिंदगी किसी सादक को टुकड़े मांगते नहीं देते, टुकड़े मांगते नहीं देते। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हमें एक चीज का मसला समझ ना आए तो हम चले जाते हैं तंजीमी पादरियों के पास। हम कहते हैं देखो नहीं समझ आ रहे हो, देखो लो समझ लो। वो समझ नहीं रहे, आप बिगड़ रहे हैं ज्यादा। आपको पता ना, किसी ने
बात कही थी कि गैरों से पूछती है तरीका नजात का। तो हमें गैरों से नहीं पूछना, हम मसीह की ब्राइड हैं, हमें अपनों से पूछना तरीका नजात का। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है ना, सैमुल के दौर के अंदर जब सैमुल मर गया, साउल के दौर के अंदर, तो साउल ने सैमुल को बुलवा लिया। किसके जरिए से? एन दौर की जादूगरनी के जरिए से। एन दौर के इलाके के अंदर दूसरा सैमुल जाइएगा। आमीन। आमीन। उसने जब बुला लिया तो ये खुदा की मुखालफत की। उसने क्या किया? उसने अपने मुलाजमों को कहा कि मेरे लिए एक ऐसी औरत तलाश करो। ऐसे लिखा हुआ है कि जो मुझे, जिसका जिन आशना, आशना का मतलब समझते ना? आमीन। आशना का मतलब तो समझते हो। ओ भाई जी वो भी ठीक है, पर इत्थे ही है, इत्थे ही बोलो। आमीन। आमीन। और उससे कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रही कि ना खुदा मेरे नाल गल कर रहा है, नबी दे जरिए, नबूवत दे जरिए गल करदा, ना रोया दे विच गल करदा पिया है। आमीन। साउल बादशाह, पहला बनी इजराइल दा बादशाह, ते ना ही ओरीम तमीम दे जरिए गल कर रहा है। मैं की करा? हुण एक ही रस्ता रह गया, किसी तंजीमी पादरी को चला जाना, किसी वर्ल्ड डिनोमिनेशन चर्चिस को चला जाना, वर्ल्ड डिनोमिनेशन काउंसिल को चला जाना। वो दसे कि मसले दा हल की है। चलो खैर है, असीं बिलीवर हुन्ने, कोई मसला नहीं, इधरों भी खा लो उधरों भी खा लो, है कोई गल नहीं। असीं साधक हुन्ने, आप इत्थों तो मिलते पे ने, नहीं मिलते तो उधरों टुकड़े खा लो। आमीन। समझते हो कि नहीं समझते? ये मैं सही कहण, खांदे ने, मैनूं पता है। अद्धी लत्त उत्थे फसी है, अद्धी उत्थे फसी है, अद्धी कबरां च फसी है, अद्धी मसीह च फसी है, अद्धी दीवियां च फसी है, अद्धी जनाब मेलियां च फसी है, अद्धी इधर फसी हुई है। आमीन। और अगे मैं दसदा, तुहाडीआं 50 नस्लां भी गुजर गईयां ना, होना होना कुछ नहीं तुहाडा। आमीन। सच्ची कह रहे हैं, जिन्ना लई तू पाप कमावे। समझ हो ना? ये पाप है, गुनाह है। लोगों तो इतना नहीं पता। आज किस दौर में आप जी रहे हैं? दुल्हन पर तो यसु मसीह के जो अलकाब आज कलीसियां इस्तेमाल कर रही हैं, उस पर बैरियर लग गया है। आमीन। पता है आपको इस बारे में? हिंदुस्तान के अंदर जो लोग परमेश्वर कहते हैं, भाई ब्रानम कहते हैं परमेश्वर नहीं कहना चाहिए, खुदा को ईश्वर नहीं कहना चाहिए। आमीन। परमेश्वर का लफ्जी मतलब ही किसी को नहीं पता। और भाई ब्रानम ने समझाया इसका लफ्जी मतलब क्या है। एवें तो नहीं ना, फिर नबी दी गल मजाक तो नहीं होती ना। परमेश्वर का लफ्जी मतलब है मां का शोहर। एक ही गल, मां का शोहर। ओदी मां भी है तो ओदा शोहर भी है। समझ आ रही गल दी? आमीन। इस मारिया। और मैं बताऊं आपको, वहीं पर एक जत्था ऐसा है जो मैसेज बिलीवर्स है, लेकिन वो ईश्वर परमेश्वर कहता है। तो ये कौन है जत्था जो क्या बताने के बावजूद भी परमेश्वर कह रहा है? कहता कुछ नहीं होता, खैर एक ही बात है, हम ही मार दे पे। आमीन। ये 5 कुंवारियों वाला जत्था है, आमीन। जिन्हां कोल तेल है पर अपनी अकल वाला तेल है। ऐसा नहीं है कि हम तंजीमी लोगों की बात करते हैं, नहीं, मैसेज में भी जो अव्वल है आखिर हो जाएगा, वो जो आखिर अव्वल हो जाएगा। भाईजान कितने फिरते पे हो तुसी? एडा सख्त मामला है तो तुसी लंबी तान के सुते हुए हो। हम बिलीवर्स हैं, भाई बाबर दे है ना, भाई बाबर दा खैर चर्च नहीं हैगा, खुदा दा चर्च है। एंड मैसेज चर्च जाने हैं, इत्थे ते बस आम यही चलदा, भाई बाबर दे चर्च जाने हैं, उन्हां दे थोड़ी चर्च ने। अपनी थ्योरी सिद्धि करो, अपनी थोड़ी लाइन सिद्धि करो, गलबात सिद्धि करो। आमीन। हालेलुया। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी, मैं आपको सही बता रहा हूं। तो कुछ लोग चीजों को एमे चामे जानते हैं, एमे चामे वाली बात नहीं है, शेर की सवारी है, मैंने पहले ही बताया था। आमीन। एंड टाइम मैसेज किया, शेयर हाँ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਾਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 19 ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਾ ਪੀ ਮਜ਼ਾ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰ। ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਹਨੇ? ਬਾਗ ਕੌਣ ਸੀ? बाग कौन सी? हवा थी बाग। कीती उन्हें बागबानी, जट उर्जा रखा बाग दा, तेनू बाग। तो बाग में कोई दूसरा बीज बो गया। समझ आ रही गल दी? कुछ लोगों को तो गल समझ आए ना कि उठ के बैठ जांदे, अच्छा ते फिर कहंदे ने ना, वो कहंदे ने कि नहीं भाई भैणो थोड़ा बोलिया भी करो, उठ के भैणा, अच्छा नहीं, अच्छा वाकई होर की क्या सी? ते भाई उठ के नहीं है, कित्थों है, ते है ही नहीं गल, ओ खुदा, अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ऐसे नहीं,
हम आगे बढ़ते हैं। ईमानदार की जिंदगी में रुकावटें, ये हम चला रहे हैं इसको, आमीन, इस टॉपिक को लेना। तो ये कौन ईमानदार की जिंदगी में किसकी बात चला रही है? हम घंटा इत्थे बह के जनाब गल्लां सुनी जा रहे हैं ते करी जा रहे हैं। किहदी गल करन दे? अपनी करन दे असी करन दे? क्या साडी समझ है? पौलुस कहंदा साडे च साडी समझ नहीं, अकल ही नहीं, साडे च मसीह दी अकल है। ते मसीह दी अकल ना समझिया जांदा ते मसीह दी अकल जिहड़ी कि रूह है, खुदा दा रूह मसीह दी अकल है। वो आंदा ते सानू एक बंदे दे जरिए, कोई मेरी जगह कोई और भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आमीन, उसके जरिए सिखाता है। तो मसीह की अकल और उसकी ब्राइड की अकल एक हो जाएगी तो फिर गल्लां समझ आएंगी, फिर सरप्राइज होगा, वेरी गुड यार, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बिलीवर होए ते जनाब जुम्बश ना होए अंदर, हालेलुया, खुदा बरकत दे आपको, गॉड ब्लेस यू। तो क्या है रुकावटें? उन्हें क्या केड़ा रोकदा है? ते केड़ा रोकदा है? तुहानू भी पता केड़ा केड़ा रोकदा। उन्हें यीशु ने भी रोकया, सारे ने रोकया। यीशु मसीह ने क्या कि मेरे बंद कीते हुए खोल नहीं सकता ते मेरे खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता। जो तक यीशु मसीह ने रोकया कि मत लिख, उन्नी देर तक कोई लिख नहीं सकता। ते जो यीशु मसीह ने कहा हुण मत मुड़ी ना, हुण वक्त है, हुण बोल, ते उत्थे यूहन्ना बोलिया, उत्थे मुकद्दस जेड़े फरिश्तगान आए, जेड़े 7 कलीसिया फरिश्ते सन, वो बोले, हालेलुया। और उसकी वजह तो उन्हें मसले भी आए, उन पर उसकी वजह से प्रॉब्लम आई, क्योंकि असली नबूवत और असली कलाम का मुकाशफा जो था ये फरिश्तों के जरिए से आया। और वो फरिश्तों के जरिए से कौन सा आया हमें क्या पता, कौन सा आया था? मुकद्दस जो आखिरी फरिश्ता आया एक्चुअली में, आमीन, 7वां कलीसिया फरिश्ता, उसके जरिए से हम पिछलों की भी पता चला कि क्या गल असल विच है की। हालेलुया। थोड़ा सा खमीर का मतलब यह है कि थोड़ी सी आपकी लागर्जी, थोड़ी सी आपकी बनावट, थोड़ी सी आपका दिखावा, थोड़ा सा आपका दुनियावीपन, थोड़ा सा आपका गुनाह वालापन लेकर के जब आप आते हैं और डिस्प्ले करके आते हैं तो खमीर लगता है पूरी कलीसिया को, और कलीसिया उसका असर लेती है। और क्यों लगकर लेती है असर? क्योंकि इब्लीस घुस जाता है उसी पॉइंट को लेके। हवा का पता था उसे कमजोर है, यहां से पॉइंट पकड़ लो, आमीन, आमीन। इसी तरह कलीसियाओं को पॉइंट पे पकड़ता है, उनमें ऐसे लोग घुसा देता है, ऐसे लोगों को आने देता है जो दुनियादार होते हैं, जो गुनाह से भरे, पादरी भी, आमीन, जरा समझ लो इस बात को, पादरी भी, क्वायर भी, गाने वाली, बजाने वाली, खवातीनों, हजरात, सब वो कहता है गंद से भरी हुई है, गंद से। सुबह चर्च में, शाम को क्लब में, सुबह क्योंकि वो तंजीमी कलीसियाओं की बात करते हैं, सुबह क्या लेते हैं? किसी का बदन और मैं, और शाम को वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दुनियादारी करते हैं, कहते हैं गंद से भरे हुए सारे, बनावट है। गल समझ रहे हो? तो ये बनावट दूर कौन करेगा? खुदा का रूह उतरता है, वो करता है, लेकिन हम होना चाहें तो हम उसे बजा देते हैं। उसने कहा खुदा के रूह को मत बचाओ, हालेलुया। मैं इसको फटाफट अब कोशिश कर रहा हूं, वाइंड अप करता जा रहा हूं। इसलिए आपने कलीसिया में कोई खमीर लेके नहीं आना। आप ताजा गुंदा हुआ आटा है, साफ रहें। अगर खमीर है तो घर पे रहें, जब खमीर उतर जाए फिर आए। जब कोई काहिन पुराने यादनामा में किसी लाश को हाथ लगा लेता था, मुर्दे को, तो उसे तहारत के दिन पूरे करने पड़ते थे, सफाई के, एक्चुअली में पाकीज़गी के, उसके बाद ही वो आता था हैकल के अंदर, आमीन। तो ऐसा नहीं है कि खुदा का कानून पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, नहीं, वो रेवलेशन है नया यादनामे का। हमें माफी मांगने की जरूरत है। कलीसियों का खत निकालें, जल्दी से निकालें। और मैं इसको फिर, असल में 2 बातें रह गई थी, वो मैंने बतानी है जरूर। हालेलुया, तारीफ हो यीशु के नाम। कलीसियों 5, 7, 10 जल्दी से पढ़िए, 8वीं आयत पढ़ दीजिए। ये तरकीब तुम्हारे बुलाने वाले की तरफ से नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है, खमीर कर देता है। मुझे खुदावन में तुम पर ये भरोसा है, हाँ जी, कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे। ये और तरह का ख्याल क्या है? कि मैसेज तो अलावा कुछ सोचना, मैसेज के अलावा कुछ और बात को सोच लेना कि नहीं यार, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मिक्स तरह की चीज खुदावंद नहीं पसंद करता। आप 2 तरह का कलाम लेकर, सॉफ्ट नेचर का कलाम लेकर और खुदावंद के रेवलेशन की सख्त नेचर का गोश्त वाला कलाम लेकर कभी जी नहीं सकते। आप अपने जमाने के मुताबिक 2 तरह के ख्यालों में डावाडोल नहीं होना। हमने, मूसा ने यही कहा था, तुम कब तक 2 तरह के ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके हो जाओ, और अगर नहीं है तो तुम बाल के हो जाओ। ऐसा कहा था ना जब बाल देवता बनाया था, उन्होंने बछड़ा बनाया था, और उसने कहा अगर खुदावंद को तुम मानते हो तो इधर मेरी तरफ खैमा के सामने आ जाओ। हैकल जहाँ पे उस टाइम पे खैमे के अंदर संदूक हुआ करता, हैकल नहीं थी, सफर के अंदर थे वो। संदूक कौन सा? का संदूक। गल समझ रहे हो ना, जिसे खुदा दी ज़रूरी होती सी, शिकायना ग्लोरी जिसे कहते हैं, जलाल का संदूक, जहां पर संदूक के ऊपर जो खुदा का जलाल था। अब ये है, उसने कहा 2 तरह के ख्याल में नहीं रहना। जी पढ़िए। मुझे खुदावन में तुम पर ये भरोसा है कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे। हाँ जी। लेकिन जो तुम्हें
घबरा देता है हाँ। तो वहाँ कोई हो सजा पाए। अब ये कोई जो है किसी इंसान में होकर आता है। क्या सांप को सजा नहीं मिली थी? मिली थी क्या नहीं? किसने घबराया था उसे? किसने दूसरा ख्याल डाला था हवा के अंदर? सांप ने। सांप में से होके इब्लीस ने डाला था ना, सांप ने। आमीन। सर्प ने, स्नेक ने नहीं। जो ख्याल पा रहा सी ना, ए फल वेख लै, अखां नूं बड़ा अच्छा लगदा पिया, उदों सप ऐला नहीं सी जिन्हों अंग्रेजी च स्नेक कहंदे ने। उदों स्नेक नहीं सी तो क्या था वो? सरपेंट था। सरपेंट शरीर, सरपेंट सीड, शरीर की नस्ल, सांप की नस्ल। सांप की पहली हालत जब वो बातें करता था, हुण गल्लां करदा है कुछ आप नहीं ना करदा, ये वाला नहीं सी। तो उसने डाला, वो साइंसदान था, उसने साइंस डाली हवा के दिमाग में। हवा क्या है? कलीसिया की रिप्रेजेंटेशन है। हवा कलीसिया को पेश कर रही है। और कलीसिया किसकी बीवी है? आदम की, पहले की। और आदम कौन है आज की डेट का? यीशु मसीह। और उसकी हवा कौन है? मैं और आप। कभी कभी आता है वो हमारे पास भी वो दरख्त दिखाने के लिए। वो दरख्त आज कौन सा है? वर्ल्ड यूनाइटेड चर्चेस काउंसिल, दुनिया भर की कलीसियाओं का अकट्ठ। परसों मुझे एक भाई बता रहे, मैंने उनका नाम नहीं लेना, मुझे कहते हैं भाई बात बड़ी समझने वाली, करंट न्यूज बताने लगा हूं। मुझे कहते हैं भाई जी वो परसों मिला मुझे ना, जुम्मे वाले दिन मुझे कहते हैं भाई जी वो हमारे इलाके में आईनन में प्रोग्राम हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। कहता है काफी बड़ा बैनर शैनर भी लगा है, तो उसमें बड़े पादरियों की तस्वीरें हैं, आपकी कोई नहीं। ताड़े जो कईयां नूं पता है उत्ते बैनर कोई लगा दे। हाँ जी लगा हुआ है, मैं वैसे नहीं वेख्या लेकिन शुक्रिया खुदा बरकत दे आपको, लगा हुआ है। कहते पर सब ताड़ी तस्वीर नहीं, क्यों नहीं? ऐ मेरी उम्मत के लोग, उसमें से निकल कर असी तो निकले हुए हैं। हाडी फोटो ने क्यों लानी है भाई? यीशु ने पहले 12 चुने सन ना, पहले 12 चुने सन, फिर कितने चुने? 70। टोटल कितने हो गए? वापस कितने गए? 70 ते 71। 70 पहला चले गए थे, 71वां रह कितने गए? खुदा ने 11 रहन दिते कीते, 11 रहन दिते। चुनाव नूं पूरा किया खुदावंद ने, चुनाव नूं पूरा किया। उन्होंने कहा मैं जो 12 चुने तो 12 का मैं जोटा रखना है। समझ आ जी ना गल दी? यानी 12 का मैंने काउंटी पूरी रखनी है। तो बहुते किधर चले गए? बाबल विच लिखा, दोबारा उसमें नहीं मिले। हम में से भी कुछ निकले थे, ट्रेन से उतर गए और फिर हम में नहीं मिले। हम में प्रॉब्लम है ते फोटो साड़ी क्यों लानी है? साड़ियां ना गल्लां उन्हां नाल मिलदियां ने, ना साडा ईमान उन्हां नाल मिलदा है। हाँ उन्हां दे नाल कैथलिक वालियां दा ईमान मिलदा है। वे लोग कैथलिक वाले दी लाई है विच फोटो, ते उंज इत्थे लोग ना अपने चर्चां च उन्हां दे खिलाफ है ना, मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता, बहुत कुछ कहणगे। वो इत्ते बुत परस्त ने, इत्ते दीवे ओ की मेलियां नूं मनदे ने, आ मनदे ते हुण की है? साधक नहीं हो तुसी, मैनूं लगदे साधक हुंदे ते फिर टुकड़े ना खांदे उत्थों मंग। तुसी साधक है भी नहीं हो भी नहीं सकदे हो। सदाकत तो तुसी हजारों लाखों करोड़ों कोस दूर हो। कई नूरी साल का फासला है तुम्हारा सदाकत से, क्योंकि हमारा जो खुदावंद है कई नूरी साल के फासलों पे रहता है। जी वहां तक रसाई उसी की होगी जो उसमें से आया होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो एडा इजी ना लो, तुसी स्पेशल वन हो, खासुल खास हो। यसु मसीह आस्ते ना कुछ औरतां रोन लग पईयां। यसु ने कहा मेरे आस्ते ना रोवो भाई, अपने बच्चों आस्ते रोवो। ये औरतां किहदी तमसील ने? उन्हें कहा मैनू यसु यसु करके लगे हो गीतां च भी तर रोई, ते जदों ईस्टर आउंदा लग पैंदे हो टसवे बहान। वड्डे वड्डे गलेडू, जिड्डा वड्डा गलेडू, ओडा वड्डा बलीवर, ओडा वड्डा रूहानी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं माजरत नाल गल कर, वहां पे भी उनमें भी कुछ खुदावन का बीज पड़ा हुआ है, लेकिन वो निकलेगा एक टाइम पर। हर बंदे के लिए एक टाइम मुकर्रर है। आमीन। तो क्या है? बनावट है, दिखावा है, और लोग इसी को सच्चाई मान रहे हैं और गिरेंगे उसी तरह जैसे हवा गिरी थी। हालेलुया। तो तस्वीर नहीं लगाई, मुझे खुशी है बल्कि नहीं लगाई, मुझे खुशी है बल्कि नहीं लगाई, सच्ची कह रहा हूं मैं। मैंने कहा वो भाई नहीं लगा सकते। तजाद का बीज किस किस को पता है? टॉपिक किसने पढ़ा? तजाद का बीज
اس کا مطلب تضاد کا مطلب کی ہے؟ تضاد کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے گہری اردو والے بیٹھے تھے کچھ تضاد نہیں. اچھا گاڈ بلیس یو. وہ نہیں ہے ویسے اردو دے وچ الفاظ میں نہیں ایک ہوندا ہوندا سی سوال الفاظ کے کیا لکھیں میں نہیں لکھیں اور ایک آتا تھا الفاظ کے متضاد لکھیں. ہن دسو ہن تے بالکل ہی نیڑے پہنچا دیتا میں. الٹ الٹ فرق. ہوا کے اندر دو بیج تھے اور دونوں میں کیا تھا؟ تضاد تھا, فرق تھا. ہوا ایک کلیسیا ہے جس کے اندر دو طرح کے بلیورز ہیں خاص, ایک برگزیدہ اور ایک غیر برگزیدہ. صحیح ہوگی بات؟ تو یہ ورلڈ پہ جتنا بھی اب دنیا کا سارا یہ عدن ہے شیطان نے اپنا بنایا ہوا, جس کی اب باغبانی وہ سارے عدن کی کون خود کر رہا ہے؟ ابلیس. جبکہ اس عدن کی باغبانی دو علم میں یہ بات ہے, دو طریقے سے یہ بات ہے. ایک تو ہوا عدن تھی جس کی باغبانی آدم نے کرنی تھی, یہ مکاشفہ ہے. اور دوسرا کیا تھا؟ دوسرا وہ باغ تھا جو لگایا گیا تھا جس کے گرد پھر 16 تلوار بھی لگائی گئی تھی. سمجھ آئی میری بات کی ساتھ رہے؟ اور وہ اس عدن پر کنٹرول کس کا آ گیا گناہ کرنے کے بعد؟ ابلیس کا, کیونکہ گناہ آ گیا نا, اس کا کنٹرول آ گیا. اور اس کنٹرول کو حاصل کس نے کیا؟ میرے اور آپ کے یسوع نے. اس نے کہا اب میرے پاس اختیار ہے. جب وہ اسے لے کے ہیکل پہ چڑھا رہا تھا, کہہ رہا تھا گرا دے خود کو نیچے, تب اختیار کس کا تھا؟ تب کدا سی ابلیس کا اختیار تھا. اس لیے جو کہندے نا سارا مینوں دتا گیا, کہندا نا یہ سارا میرا ہے, میں تجھے دے دوں گا. کیوں دا سی, لیکن وہ کول آیا کدوں؟ جدو ہوا نے گناہ کیتا. پھر وہ اختیار لیا کنے؟ یسوع مسیح نے کیا زمین تے اسمان دا کول اختیار میرے کول ہے. تے کنج لیا اختیار؟ لیا کس طرح؟ ایویں نہیں لیا, جان دینی پئی, رکاوٹاں نو توڑنا پیا. انہیں کیا تے بدعتی ہے, اے تے بالزبول ہے, اے تے بدروواں دا سردار, او دے کولوں مدد لے کے بدروواں کڈدا. کی کچھ نہیں یسوع دے بارے چ کیا گیا. یسوع مسیح نو کیا ٹیلی پیتھی جاندا ہے. بھائی ابراہیم کہندے نے مینوں بھی لوگ یہی کہندے سن, اے کوئی جادوگر ہے, ٹیلی پیتھی جاندا جے. ایویں نہیں جے روحاں دا دیکھا کیڑے گھروں آئی ہیں, تو کتھوں آئی ہیں, تو اچھا تیرا ہے وے اینے سال تو اے پرابلم سی, تیرے بیٹے دا نا ہے, ہسبینڈ دا نا ہے وے, اینسی او لوگ رون لگ پیندے سن. اینوں کینج پتہ سارا؟ کیا خیال ہے؟ تو کہتا ہے ایک دم تھا وہاں پر, میں نے جانا تھا, تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگوں کی وہاں پر گنجائش تھی, اور میں نے جانا تھا, کمی بیشی خدا معاف کرے. تو کہتے ہیں جانا تھا, تو وہاں پر نا کسی نے یہ خبر پھیلا دی کہ وہاں پہ FBI والے آ رہے ہیں امریکہ کے اندر. تو FBI والے آ کے تو بھائی برینم کو وہاں پر پکڑیں گے اور اس کے جھوٹ کو بے نقاب کریں گے. کہتا ہے میرے ساتھ بھائی بیکسٹر تھے, بیکسٹر ان کے دوست تھے, انہوں نے کہا بھائی مت جائیں, آپ کی بے عزتی ہوگی, ہم جانتے ہیں آپ سچے ہیں, خداوند کی نبوت لے کر آئے ہیں, آپ سچ بولتے ہیں, لیکن وہ آپ کو انسلٹ کریں گے, بے عزت کریں گے, آپ نہ جائیں. کہتے ہیں نہیں, مجھے جانا چاہیے, تبھی تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ سچا کون ہے. مجھے جانا چاہیے. اور آپ کو پتا نا بھائی کو پہلے ہی میٹنگ سے پہلے خدا ویژن دیتا تھا, اور رویا میں بتایا گیا, خداوند نے بتایا کہ وہاں پر ایک کالا سایہ ہے, اور سائے کی صورت میں نظر آتا تھا. وہ اچھائی کا سایہ نور تھا, اور برائی کا سایہ کیا تھا؟ کالا سایہ تھا. اور اس نے کہا وہاں پر کچھ ہے, تم ایسا ہے کہ وہ تمہارے خلاف پلاننگ ہوگی. اور وہ جب گئے وہاں پر تو لکھا ہے کہ وہاں پر ان کی, جب میں کتاب پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اوپر گیا, انہوں نے کہا کہ بائبل میں ایک شخص کا ذکر ہے, شمعون غیب دین. شمعون ایک شخص تھا نئے ادرامے کے اندر جو غیب دین تھا, غیب کی باتیں یعنی نبوت کرتا تھا, جھوٹا تھا. کہتا ہے میں یہاں پہ اناؤنس کرتا ہوں, اگر میں شمعون غیب دان ہوں تو میں یہیں پر ہلاک ہو جاؤں. آمین. اور اگر آپ جھوٹے ہیں, FBI والوں کو کہا, تو ادھر سامنے اوپر آ جائیں, میں کہتا ہوں آپ ہلاک ہو جائیں. سمجھ آ رہی گل دی؟ تھوڑی بہت آ رہی ہے. کہہ رہے کہ جو بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں, یہاں اوپر آئے, اور اگر میں شمعون غیب دان کی طرح جھوٹا ہوا تو میں مر جاؤں گا. میں مانگتا ہوں اپنے لیے موت, میں مر جاؤں. لیکن اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ مر جائیں, کیونکہ نبی کی نبوت جو ہے نا, بات جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا, نبی تو پیچھے مڑ کے دیکھے تو کئی مر جاتے ہیں, پتہ نا آپ کو, 42 بچے ریچھنیاں مار دیتی ہے. کہتا ہے اصل میں FBI ہے ہی نہیں تھی. 2 پادری تھے وہاں پہ جنہوں نے اس میٹنگ میں, پادری بھائی برینم کو چاہتے تھے کہ یہ فلوپ ہو جائے میٹنگ, اور وہ تنظیمی پادری تھے, اور وہ بھاگے وہاں سے. میرے پاس پڑھی ہوئی ہے, اس کتاب کا نام ہے ڈیمونالوجی, علم الشیاطین. تو بھائی اس میں 3 علم بتاتے ہیں کہ مذہبی, جسمانی اور روحانی.
3 रिलम में इब्लीस जो है वो आप पर जोर करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब। तो उसमें वो बता रहे हैं, तो ये बात करने का मेरा मकसद क्या है कि कोई मुखालफत नहीं होती, अंदर से मुखालफत होती, बीच से चलती है। गल समझ रहे हो? तो रुकावटें हैं, और बहुत सी रुकावटें आती हैं, आपकी जिंदगी में भी आई होंगी। एक हवाला मैं खुद पढ़ देता हूं, उसके बाद आमीन करते हैं। पहला थस्सलुनीकियों का खत, उसका दूसरा बाब निकालिए। पहला थस्सलुनीकियों, उसका दूसरा बाब, और उसकी 17, 18 और 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। ऐ भाइयों, जब हम थोड़े अरसा के लिए जाहिर में ना के दिल से तुमसे जुदा हो गए, कहता है थोड़े अरसा के लिए भाइयों हम तुमसे जुदा हुए थे, दिल से नहीं हुए थे, जाहिरी तौर पर थोड़े अलग हो गए थे जी। तो हमने कमाल आरजू से तुम्हारी सूरत देखने की और भी ज्यादा कोशिश की जी। इस वास्ते हमने, यानी पौलुस ने, हाँ जी, एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा तुम्हारे पास आना चाहा। उसने हम का लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल किए। उसने कहा इसलिए हमने, मुझ यानी मुझ पौलुस ने, वो अपने आप को हम कह रहे हैं, हमने यानी मुझ पौलुस ने तुम तक आने की, पढ़िए, एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा तुम्हारे पास आना चाहा, हाँ जी, मगर शैतान ने हमें रोके रखा। अब ये है मामला। आज मैंने ये बता रहा हूं, बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं। तो पौलुस कहता है कि कलीसिया, मैंने 2 दफा आने का इरादा किया तुम्हारे पास, ठीक है। और आगे आप पढ़ेंगे तो वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे कलीसिया के मुताल्लिक के, ये सारी चीजें, क्योंकि आप खुदावंद की कलीसिया उसके दुल्हन का हिस्सा हो। ओके, तो इसमें वो कह रहा है कि मुझे शैतान ने रोका। पौलुस को शैतान पहले कलीसियाई फरिश्ते को रोक रहा है। तो मैं बार बार आपको कहता हूं कि इन सबको रोका, और ये बड़े खासुल खास थे खुदा के। और भी बहुत सी जगहों पे ये कह रहा है कि मुझे रुकावटें हुई हैं, जिस नेकी का इरादा करता हूं वो होती नहीं, जिस बदी का नहीं सोचा होता वो हो जाती है। तो देखें, इतने पारसा, इतने बेहतरीन लोग जिन में खुदावंद बात करता था, सही थे, उनको इब्लीस रोकता रहा, तो क्या आपको नहीं रोकेगा? तो इसका मतलब उस वक्त अगर जमाना शुरू हुआ था तो आप जीत के करीब हैं, तो आप तो वो ज्यादा रोकेगा। तो आप अपने मुकाबले को इतना आसान क्यों ले रहे हैं? आपके दोस्तों के जरिए रोकेगा। किधर जा रहे हो? चर्च जा रहे हैं। और छोड़ यार, आज इतवार है, उधर नहीं चल रहे, की हो गया, आज ही तो छुट्टी स्कूल तो, कॉलेज तो, ताश खेडने वाले, ओ यार आज बारी ला लीजिए जरा आज। ओ केड़ी गल है, कोई नहीं गल, ओ कुछ नहीं है, भाइयों का यही काम है, बस एक कोई काम। ये क्या है? रोकना। जाना चाहोगे रास्ते में 10 रुकावटें, 50 रुकावटें होंगी। बात समझ रहे हैं? आपके पास कपड़े रेडी नहीं है, बिजली चली जाएगी। नहाए नहीं है, पानी चला जाएगा। गड्डी नहीं सी, गड्डी नहीं मिल रही, इन ड्राइव हो ही नहीं रही। जे हो रही है तो 1000 रुपया लग गया, पीक लग गई है जी आज, चल उठो नहीं तो इतों तो तेन नुकसान दवाना। समझ आ रहे हो? ये क्या है? ये क्या है? रुकावटें हैं। तो कहता है इब्लीस ने हमें 2 बार हमने आने की कोशिश की, दोनों बार उसने रोका हमें। तो इब्लीस क्या करता है? रोकता है। लेकिन भाई इब्राहिम अपने एक मैसेज में कहते हैं, जिस बच्चे ने पैदा होना होता है, तो जब उसके वज़ा हमल का, यानी उस वालिदा, उसकी माँ के वज़ा हमल का वक्त आ जाता है, तो पैदा होने से नहीं रोक सकती। एक्चुअली में दुनिया की कोई ताकत उसे पैदा होने से, दुनिया में आने से रोक नहीं सकती। इसका मतलब क्या? क्योंकि वो खुदा के कवानीन के मुताबिक, खुदा के फजल के ज़रिए असर इस दुनिया में आकर रहता है। और इसी तरह की बात है कि जब एक ईमानदार अपनी जिंदगी में निकलता है, तो दुनिया की कोई ना मौसम, ना हालात, ना वाकयात, ना रोशनी, ना अंधेरा, ना पानी, ना तंगी, ना तकलीफ, ना ही उसने कहा नंगापन, ना ही मुसीबतें, ना तलवार, और भी बहुत सी जगहों पे लिखा हुआ है। हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज हम देखते हैं कि मसीह की मोहब्बत से जुदा होने के लिए बस गिरती हुई दीवार को एक धक्का। मैं तो पहले ही कह रहा, हाँ खुदा करके, हाँ जी, मैं तो पहले कहना, हाँ खुदा करके झूठा, अच्छा होया फोन ही नहीं आया, अच्छा होया भाई यार मिस कॉल ही नहीं की, अच्छा होया चर्च ही नहीं लगा। अब मैं तो पहले ही कहना, हाँ जान छो। ये जो हुआ है ना, इसे पल्ले बांध के रखना है आपने। आमीन। ताड़ी जिंदगी रुकावटां ने यस्सु वास्ते रुकावटां नूं तोड़ना है। पैसे की रुकावट हो सकती है, गरीबी की हो सकती है, मुसीबत की हो सकती है, दुख की हो सकती है। आमीन। अच्छा, कई लोगों ने बाइबल पढ़नी होंगी है, उन्होंने को उस तरीके से पढ़ी नहीं जाती, ये भी तो रुकावट है। तो पढ़ना शुरू करो ना, फिर पढ़नी आएगी। आमीन। जो नहीं आता उसमें मेहनत करो, नहीं समझ आती बेटी से पूछो, बेटे से पूछो, पूछ लो यार, इसमें क्या शर्म है? कोई प्रॉब्लम नहीं। गल समझ रहे हो ना? शर्म करना ते उस आकड़ दे विच पूछना ना भी इब्लीस दी एक रुकावट है। आमीन। खुदा तुहानू बरकत दे। फिर जेलसी का रूह कलीसिया के अंदर, यह रुकावट है आपके ईमान के अंदर। पाक कलाम में लिखा, मोहब्बत दूसरे को अपने से अफजल जानती है।
जब से आप ऐसा करना शुरू करेंगे, याद रखियो तुसा कुछ भी नहीं कीता, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ, क्योंकि तुसी हलीम रहे हो, बाबरकत रहे हो, आमीन, साबिर रहे हो, शाकर रहे हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत दे। ईमानदार की जिंदगी में रुकावटें, आप ईमानदार हैं, आपकी जिंदगी में रुकावटें आ सकती हैं, आई भी हैं और आगे ज्यादा आएंगी। हैं रसूल कहता है कि जो जमीन पर दीनदारी के साथ जिंदगी बसर करते हैं वो जरूर सताए जाएंगे। सताया जाना रुकावटें हैं, आमीन, अपनों और गैरों सभी की तरफ से। हालेलुया। आपका बाइकाट होगा, आपसे नफरत की जाएगी, आपको अपनी महफिलों में, अपने इलाकों में, अपने प्रोग्राम्स में, चाहे वो रूहानी जिस्मानी हो, बाइकआउट किया जाएगा, रोका जाएगा कि नहीं, इनसे नहीं बात करनी, मिलना नहीं। मुझे एक भाई ने कहा आपसे तो हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं मिलाना चाहिए भाई? कहते हैं आप बाप बेटे कुदस को नहीं मानते। तो मैंने उसे बोला भाई ये आपको किसने कह दिया हम नहीं मानते? ऐसी चीजें इब्लीस डाल देता है लोगों के जरिए से उनके दिमागों में कि जो होती ही नहीं। मैं कहा पाक कलाम में जो लिखा है वो हम क्यों नहीं मानेंगे? हम बाप को भी मानते हैं, बेटे को भी, कुदस को भी मानते हैं। कहते नहीं आप वनस बिलीवर हैं। तो मैंने कहा बाइबल कहती है वनस बिलीवर होना चाहिए, आपने पढ़ा नहीं? कहते नहीं हमने पढ़ा है, लेकिन खुदा जो है वो तीन में है। मैंने कहा नहीं खुदा तीन में किधर है? खुदा तो बेशुमार अनलिमिटेड गॉड है, उसमें तो बहुत सी फंडामेंटल है, आपने सिर्फ बाप बेटा कुदस भी अटक गए हुआ। अधूरा अलम वो कहते नीम हकीम, खतरा है। तो ये आजकल की मिनिस्ट्रीज जो हैं भाई, वो नीमी हकीमी के चक्कर में पड़ के लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं किनारे लग रहे हैं। ऐसे हम किनारे लग जाएंगे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, इसी मसा में खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। इस कलाम को पढ़े जाना और सुना जाना हमारे लिए बरकत।